Hello everyone, a warm good morning to all of you. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର SSB PGDର ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 24କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ପାର୍ଟ 24 ଦେଖିକିରି ଛାଡ଼ିକିରି କିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେବ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିଲୁ ତ ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର 4 ନଭେମ୍ବର ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆଉ 12 ଦିନ ରହିଲା। କିଛି ବି କୁଆଡ଼େ ବି ହେଇଯିବ 12 ଦିନ କିଏ ଜାଣିବୁନି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ପଳା ଆସିଲେଣି ପ୍ରିପେୟାର କରି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି, ଟିକିଏ ରହିଯାଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏହି ଭାବରେ ଏହି ଚିନ୍ତା, ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା, ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଧାରଣାରେ ଆମେ ଆଜି ବଢ଼ିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରାଇଦେବି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ପାଖାପାଖିରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେବ ଯେ ବହୁତ କିଛି କରିଲା ଭଳିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡିସ୍କସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ସେ କହିଲେ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ରିଗାର୍ଡ ଟୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଲିଫ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ବିଲିଫ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୁପ୍ରିମ୍ ବିଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ବିଲିଫ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପିପିଟି ନ ଦେଖାଗଲେ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ, ପିପିଟି ଦେଖାଯାଉନି, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉନି, ଲେଟର୍ ଛୋଟ ଆସୁଛି, ଏନି ଡାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଟୁ ଆସ୍କ ମି ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଯେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ ନା ବିଲିଫ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୁପ୍ରିମ୍ ବିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍। ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ବହୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁ ପୂଜା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ବଜନୀନ କ'ଣ ଏ କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି which of the following books described state power in India as occupying a continuum with centralizing and concentrations at one end and decentralization and pluralism on other? Option A Pursuit of Lakshmi, B India's political economy, option C the political economic of development, option D the state and poverty in India। भारी भल क्वेश्चन एटा। आर आंसर कौन हम ए ना बी ना सी ना डी? इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो आर आंसर है कौन ऑप्शन ए इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी किए लिखिले ना रुडलफ लिखिले बुकटा इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। एटा को मन रखिए आउ से कथा से बुक रे कहिथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला जोटा कि आपनकर फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन आलमंड एंड भरबास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? ऑप्शन ए इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, बी कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, सी अफेक्टिव ओरिएंटेशन, डी एम्पिरिकल ओरिएंटेशन। एटा तो आप डायरेक्ट नोट रू उठे आसी आपको समस्त आंसर कर। आर ये आंसर कौन हो ना क्वेश्चन नंबर 3 रे आम देखिलु ऑप्शन डी हो आंसर, कारण से 3टा ओरिएंटेशन कहते इवैल्यूएटिव, कॉग्निटिव आउ अफेक्टिव है। तापर आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन आसीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते ना which one of the following is a transformationalist view of globalizations? Option A globalization is not leading to wither away of nations state, rather to the emergence of a conspicuously global politics in which the traditional distinction between domestic and international affairs is not enough meaningful. Globalization is bringing about the demise of sovereign nation state. तापर से कहते ना स्टेट एंड जियोपॉलिटिक्स रिमेन द प्रिंसिपल फोर्स शेपिंग कंटेम्पोरारी वर्ल्ड। तापर से कहते जियोपॉलिटिक्स, स्टेट पावर, नेशनलिज्म एंड टेरिटोरियल बाउंड्री आर ग्रोइंग नॉट लेस इम्पोर्टेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये आप कौन आंसर हम आपन तो मु क्वेश्चन कहीदेली जे
ଆପଣଙ୍କର ट्रांसफॉर्मलिस्ट व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन है क्वेश्चन रे आपन पढ़िबार किसी प्रॉब्लम होतले मते कहिबे एफ साइड रे दीटा ऑप्शन हे गला हां तापरे आरो साइड रे आपनकर आ गोटे ऑप्शन हे गला आरो साइड रे आपनकर ए दीटा ऑप्शन हे गला त आपण एटा आंसर को सिलेक्ट करिवे कौन आंसर ए हबो ना बी हबो ना सी हबो ना डी हबो कौन हबो आंसर टा मु कहि देबी यार कौन हबो ऑप्शन ए हबो ना कौन ऑप्शन आपनकर एठे ए हबो ट्रांसफॉर्मलिस्ट व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन माने कौन आम एटा बुझिबार अछि ग्लोबलाइजेशन रे तीनटा व्यू अछि केतेटा व्यू अछि तीनटा व्यू अछि आकुटी बुझि दियंतु बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट टा गोटे हला ट्रांसफॉर्मलिस्ट व्यू आ गोटे हला आपनर स्केप्टिक व्यू आ गोटे हला आपनर ग्लोबलिस्ट व्यू बा ग्लोबोफाइल्स व्यू ट्रांसफॉर्मलिस्ट व्यू कौन कहे ना ग्लोबलाइजेशन इज नॉट लीडिंग टू द ईदर ऑफ स्टेट्स रादर टू एमर्जेंस ऑफ ए कॉन्स्पिशियसली global politics in which the traditional distinction between domestic and international affair is not enough meaningful जो से कहउचंती आपनकर गोटे दीटा डिस्टिंक्शन थिला दीटा विविधता थिला गोटे हला इंटरनेशनल अफेयर आ गोटे हला डोमेस्टिक अफेयर आ ग्लोबलाइजेशन आसवा द्वारा ए भी भितर जो डिस्टिंक्शन थिला सेटा डाइल्यूट हे गला एटा गोटे पॉइंट हे गला सेकंड रे गोटे आसिला कोन स्केप्टिक व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन जे कोन कहे ना ग्लोबलाइजेशन जो व्यवस्था आसिला सेथरे मध्य कौन स्टेट रो जिन रिलेवेंस रहा कथा रहिला स्टेट रो किछि भी माने सोवरेनिटी हाम्पर हैला नाही से ग्लोबलाइजेशन गोटे कौन कहले ना एटा गोटे माने एम्ति कांसेप्ट जोडा कि स्टेट रो रिलेवेंस आज मध्य अछि पूरा टोटली से माने कहले कौन से स्टेट को इंपोर्टेंस देले गोटे हला स्केप्टिक व्यू हैला आ गोटे कौन हला ग्लोबोफाइल्स जे कि ग्लोबलाइजेशन द्वारा स्टेट रो रिलेवेंस टा डाइल्यूट हैला बोली कहले आकु मन रखिबे तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखि देबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला आपनकर ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट रिलेटेड टू क्लासिकल रियलिज्म ऑप्शन ए पॉलिटिक्स एमंग नेशन बी ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स सी द प्रिंस एंड डी द पेलोपोनेसियन वार क्लासिकल रियलिज्म नॉट रिलेटेड को बुकटा एटा आपनकर आंसर हे जिवो ऑप्शन बी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जोटा कि आपनकर रिलेटेड टू द न्यू रियलिज्म्स मत के कहि परिबो जे ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किए लिखिथिले केउ वर्ष लिखिथिले आ तांको ना कोन मत के कहि परिबो तांको ना कोन किए लिखिथिले ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स कहिबे मते हला किए लिखिथिले जॉन मॉर्टिमर लिखिथिले तापर नेक्स्ट आसिला व्हिच अमंग द फॉलोइंग can be associated with Aurobindo's belief. Option A, his conviction that he did not regard the country as an inert object but as a mother. Option B, his resolve that he would not merely repeat the name of God but have a direct realization of him. Option C, that his education and talent belong to God which could be utilized for personal happiness alone. Option D, all of these. आंसर कौन हम अरविंद बिलीफ्स कोटार आम जा कौन हम ए हम ना बी हम ना सी हम ना डी हम ए हम कि ना कौन हम आंसर कौन हम ये ना आंसर आपणकर ऑप्शन डी हो तो से कौन कही ना से कही आपणकर रिलीजन गोटे मदर बोली से कही एति क्लियर तापर से कौन कही ना नॉट मेयरली रिपीट द नेम ऑफ गॉड डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ हिम से कही तापर से कही कौन ना एजुकेशन और टैलेंट आपणकर जो अच्छी सेटा हूँ गॉड रु आसे आउ सेटा आपन को हेल्प करे जे पर्सनल हैप्पीनेस को रियलाइज करिया ए सब कथा आपणकर अरविंद कही है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर आपणकर ये आंसर हो कौन ना 6 रे ऑप्शन डी हो गला ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन नंबर 7 से कहउचंती आई डोंट विश देम माने कौन ओमेन आई डोंट विश ओमेन टू हैव ए पावर ओवर अदर हला बट ओवर देमसेल्व्स दीज वर्ड्स आर एट्रीब्यूट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स एक कथा किए कहिथिले ऑप्शन ए हेना अरेंट बी मारियल स्टोनक्राफ्ट सी जेएस मिल डी साइमन डी वेबर
है। क्वेश्चन नंबर 7 माने से कहते जे मु चाहेनी जे ओमेन माने डोमिनेट करंतु अदर अदर उपरे किंतु सेमाने तांको निज उपरे ही तांको डोमिनेट रहिबार अछि। ए कथा किए कहिथिले? ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी मैरियल स्टोन क्रैप ना सी ना डी कौन हम? आंसर कौन हम? बी हम। आंसर हम ये आपंकर ऑप्शन बी हम है। मैरियल स्टोन क्राफ्ट एक कथा कही बहुत भल कनसेप्टा यहाँ आप बुझा चेष्टा करेंगे। तापर आसला आपणकर कौन पचारे से ना अतुल कोहली लिंक्स हिज क्राइसिस ऑफ गवर्नाबिलिटी। क्राइसिस ऑफ गवर्नाबिलिटी ये तो गोटे क्वेश्चन हो गला जे क्राइसिस ऑफ गवर्नाबिलिटी कॉन्सेप्ट किए देथिले? अतुल कोहली देथिले। तापर ऑप्शन कौन आसला ता अर्थ कौन ना प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया। एटा फर्स्ट ऑप्शन आपण देखले। तापर सेकंड ऑप्शन आसला इनसिक्योरिटी ऑफ कांग्रेस लीडरशिप। तापर अनइक्वल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। क्राइसिस ऑफ गवर्नाबिलिटी कहले कौन? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हो ऑप्शन कौन हम? ऑप्शन डी ना ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस को से कहले क्राइसिस ऑफ गवर्नाबिलिटी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा क्वेश्चन नंबर 9। 8टा तो सेते आम इंपोर्टेंट नहीं कि 9टा बहुत इंपोर्टेंट। कम्युनिटेरियन आर्ग्यू दैट ए कम्युनिटी मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर नेशन। ऑप्शन बी कम्युनल थिंकिंग इज मोरली रॉन्ग। ऑप्शन सी नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन डी लिबरलिज्म डिवैल्यूज कम्युनल अटैचमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 रो फटाफट ये आंसर हो ऑप्शन डी जो आपणकर कम्युनिटेरियन निजिम अच्छी से क्या इंपोर्टेंस देता है कम्युनिटी को आसी कहे आपणकर जो लिबरलिज्म अच्छी यहाँ आपणर कम्युनल अटैचमेंट को कौन करे ध्वंस कर दे है। तापर ऑप्शन ए आपणर प्राय कन्फ्यूज थी जे कम्युनिटीज मस्ट टेक प्रेसिडेंट ओवर द नेशन। ना 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 कम्युनिटी मस्ट टेक प्रेसिडेंट ओवर इंडिविजुअल। यहीटा आप ठीक है ओवर नेशन तो यहाँ भूल होगला ना राइट। तो ऑप्शन आप डी होपर क्वेश्चन नंबर 10 इज नॉट इम्पोर्टेंट ये गोटे अनाबना क्वेश्चन पचारदे। तापर क्वेश्चन नंबर 11 से कहते पॉजिटिव लिबर्टी इम्प्लाइज दैट। ऑप्शन देदेले ऑल ऑफ दिस कौन न पढ़ पढ़ुआ ऑल ऑफ दिस लिखिदेले। ऑप्शन बी है द स्टेट कैन मेक इंटरवेंशन फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ्स। ऑप्शन सी वन मस्ट बी फ्री टू डू थिंग्स वन कंसिडर पॉजिटिव। ऑप्शन डी देयर मस्ट नॉट बी एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन द फ्रीडम ऑफ थॉट। पॉजिटिव लिबर्टी कहले कौन बुझ मुझे आपंकर डाउट क्लियर करी मत जन किए पचारि सर पॉजिटिव लिबर्टी कौन सर यहाँ। तो पॉजिटिव लिबर्टी हेल्ले मन रख पॉजिटिव लिबर्टी मैंने कौन आंसर कौन हम ए ना बी ना सी ना डी हम। आंसर हम आपंकर ये बी माने इंटरवेंशंस आमे जनकर लाइफ रे इंटरवेंशन करवा जे तार लाइफ को बेटर करदेला सेटा हूँ पॉजिटिव लिबर्टी। इंटरफेरेंस को जी बिलीव करता और सपोर्ट करता है यहाँ आमको टे बुझार अच्छे कारण बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज अच्छे पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन। नेगेटिव माने नॉन इंटरफेरेंस जोड़ा कि नेगेटिव हो गला। पॉजिटिव माने इंटरफेरेंस हम किंतु से इंटरफेरेंसटा आपणकर जो वेलफेयर अच्छी से हम। तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 12 से कहले आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाए। डिपेंडेंसी थ्योरी एजी फ्रांक। सिविल कल्चर सिडने भरबा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी अमर्त्य सेन। तो इनकरेक्ट पेयर को फाइंड आउट करो। ये आपंकर आंसर हो कौन ना ऑप्शन डी हो जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी अच्छी अमर्त्य सेन ताको बिलोंग करती ना है। अमर्त्य सेन नॉट रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन। अमर्त्य सेन कॉन्सेप्ट कौन होगा कैपेबिलिटी अप्रोच होगा। तापर आपंकर फ्रीडम एज डेवलपमेंट होगा ना डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो यहाँ है अमर्त्य सेन कौन अमर्त्य सेन बुक टे चेक करदे। तो अमर्त्य सेन ये आपंकर आंसर है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ना रूसोस आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 ये तो ऑप्शन डी होगा। तापर रूसोस आइडिया ऑफ परफेक्टेबिलिटी एंटेल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। ऑप्शन ए मेन आर इसेंशियली गुड नेचर्ड।
ऑप्शन बी men have no basic essence, ऑप्शन सी none of the above, ऑप्शन डी नेचर ऑफ मैन इज essentially bad। परफेक्टेबिलिटी माने कौन आपको तो समस्त आंसर कर दे मु जानी रोसो हॉब्स लॉक ये सब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर आंसर कौन हम ए ना बी ना सी ना डी कौन हम ए हम ये आंसरटा मु स्टार कर दूचे ये आप आंसर करेंगे है परफेक्टेबिलिटी मत किसी डाउट अच्छी तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 14 कहले एत बड़ स्टेटमेंट देदेले ना इफ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एन आर्टिकल विदाउट व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन would be nullity, I could not refer to any other article except this ones. Ambedkar was referring to which articles? Option A 21, 15, 32, 16 माने जे कौन कहले ना ये आर्टिकलटा एते इम्पोर्टेंट जे माने आपको छाड़देले संविधान रो जो एक्जिस्टेंस अच्छे आम माने कौन कह गोटे नलिफाई बोली आम कहीपर तो आम्बेडकर को आर्टिकल को एते गुरुत्व देते ना आर्टिकल को सी हार्ट एंड सोल बोली कहीदेले आर्टिकल सी 32 को आपणकर जो अच्छी 32 को हार्ट एंड सोल बोली कहीदेले राइट तापर आसिला नेक्स्ट क्वेश्चन आसी जाइए क्वेश्चन नंबर 15 the thought that the advent of technology and industrialization is the basic cause of human misery in modern society can be attributed to which of the following thinkers माने किए कही इंडस्ट्रियलाइजेशन आउ टेक्नोलोजी द्वारा मानवर दुर्दशा देखा मिलता है एक किए कही ऑप्शन ए तिलक बी गोखेल सी रवींद्रनाथ ठाकुर एंड डी एम के गांधी क्वेश्चन देखेबी ना होगला क्लीयर मतलब क्वेश्चन कहीदे ना किए कथा कही जे इंडस्ट्रियलाइजेशन आउ आपणकर टेक्नोलोजी द्वारा ह्यूमन सिविलाइजेशन डिग्रेड होबार लगी आउ ये कथा किए कहीपर आमर जड़े ही लोक अच्छा कौन हम आंसर 15 ए हो ना बी हम ना सी हम ना डी हम कौन हम डी हम आंसर कौन देले आंसर कौन हम ये आंसर आपंकर ये कौन हो ना ऑप्शन डी हो कौन हो पे ना ऑप्शन डी है महात्मा गांधी विषय तो मुझे कही जे 1909 लिखिदेले हिंदी स्वराज बुकटा को आउ से मॉडर्न सिविलाइजेशन को मन इच्छा क्रिटिसाइज कले जहाँ क्रिटिसाइज कले आ न कहले सरबन है तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लॉक वोट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक वोट सिस्टम ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बी लिस्ट सिस्टम सी फास्ट द पोस्ट सिस्टम डी लिमिटेड वोट सिस्टम ब्लॉक वोट सिस्टम कहले कौन बुझ ब्लॉक वोट सिस्टम तो ये आपणकर कौन हम यहाँ तो आंसर कौन हम ये ऑप्शन आपणकर सी है द फास्ट द पोस्ट सिस्टम तापर क्वेश्चन नंबर 17 ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशंस हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस कमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर आम्बेडकर सरदार पटेल मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड जवाहरलाल नेहरू सब हाई प्रोफाइल लोक ना दिगला ये किए कथा कही प्रेसिडेंट विषय रे ए बी सी ना डी किए कही ये आप आंसर हो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर कथा कही लिखिया लोक सी कहबेनि आ किए कह तापर क्वेश्चन नंबर 18 डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज द आइडिया दैट पीपुल मस्ट डेलिबरेट देयर चॉइस ऑफ कैंडिडेट
Decision must follow reasonable discussion and debate. Dissents বা dissent deliver the bad democracy. Preference must be aggravated. ए क्वेश्चनटा तो बहुत इंपोर्टाट डेलिबरेट डेमोक्रेसी हो कि जहाँ भी माने डेमोक्रेसी रिलेटेड तो एसएससी प्राय पचारती तो ये आप आंसर हम कौन ए हम ना बी हम ना सी ना डी कौन हम आंसर बी हम कि ना कौन ऑप्शन आप हम ऑप्शन बी हम है आशा करूँ आप बी देथिबे तापर आसिला आर्टिकल 371 आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ स्पेशल प्रोटेक्शन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑप्शन ए आसाम एंड मेघालय बी महाराष्ट्र एंड गुजरात सी जम्मू एंड काश्मीर डी नागालैंड कौन हम आंसर एटे ए ना बी ना सी ना डी कौन हम डी हम कि ये कौन हम आंसर स्टूडेंट ऑप्शन डी हम नागालैंड है तो ये आपड़ कौन करेंगे आर्टिकल 371 अच्छी से ए अच्छी बी अच्छी सी डी सब अच्छी ताकू जी चेष्टा करेंगे 371 रो 4टा आर्टिकल पढ़देवे 371 ए 371 बी 371 सी 371 डी ये जो 4टा अच्छी पढ़देवे यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है तापर आपन तो फेवरेट क्वेश्चन आसला जोटा कि 1000 थर प्रैक्टिस करछंती हु डिफाइन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एक्शन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑप्शन ए एफडब्ल्यू रिग्स ऑप्शन बी डुइट वाल्डो सी एडवर्ड वेडनर एंड डी रॉबर्ट डाल क्वेश्चन नंबर 20 आपनर आंसर है ऑप्शन सी एडवर्ड वेडनर जे कि डिफाइन करथिले डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए एक्शन गोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तापर आसला क्वेश्चन नंबर 21 हु अमंग द फॉलोइंग टर्म्ड द 4 डिफरेंट बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए 4P आइडिया किए देथिले ऑप्शन ए हेनरी फायल बी एल.डी. व्हाइट ऑप्शन सी लुथर गलिक एंड डी हर्बर्ट साइमन काली हे क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करथिली मध्य कोडे ना पेड रे जो पेड ग्रुप रे आपनकर कोन वीकली जो होछ आपनकर मॉक टेस्ट सेतरे हम डिस्कशन करथिलु एटा आंसर कौन हबार 4P कथा किए कही आपनकर ऑप्शन सी हो लुथर गलिक ना नहीं ये क्लियर हो गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 22 ना हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए पॉलीसेंट्रिक हायरार्की माने कौन बुझा ऑप्शन ए असीमा सिन्हा ऑप्शन बी MP सिंह ऑप्शन सी डगलास भारने ऑप्शन डी पॉल वालेस MP सिंह असीमा सिन्हा ये सब आमर कौट आसवे दिल्ली तापर JNU ये सब से जगार माने आमर प्रोफेसर माने सब सो किए कही आमर इंडिया जे पॉलीसेंट्रिक हायरार्की किए कही कौन हम आंसर ए ना बी ना सी ना डी कौन हम ए हम कि आंसर कौन ना ऑप्शन ए असीमा सिन्हा है ए हूँ आंसर जो मैंने ए मारी आपणकर कनसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आउ ठीक अच्छे पॉलीसेंट्रिक हायरार्की माने आपणकर किए देथिले असीमा सिन्हा आपण कौन करेंगे गूगल जी डायरेक्ट सर्च करदे पॉलीसेंट्रिक हायरार्की असीमा सिन्हा बेले PDF टे पड़ा आसो ताको पढ़ीदेवे है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 23 हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू हैव इनऑर्गेनेटेड द लिबरल रिफॉर्मिस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया लिबरल सो रिफॉर्मिस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय बी श्री अरविंदो सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड डी बंकिम चंद्र चटर्जी कौन हम आंसर आप ये लिबरल रिफॉर्मिस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया आपण ऑल टाइम फेवरेट कौन हम आंसर ऑप्शन हम ए हो ना नहीं ए हम आंसर राजा राममोहन राय है तो कहुए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहुए रेनेसांस फादर मैंने कहुए है तो लिबरल रिफॉर्मिस्ट से ही कहे आ किए कहे ओके तो नेक्स्ट जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन आसीगला आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द इंडियन स्टेट एज ए इंटरचेंजेबली वीक एंड कैप्चर्ड इंडियन स्टेट एज ए वीक एंड कैप्चर्ड ऑप्शन ए प्रणब वर्धन बी प्रदीप चिभर सी आशुतोष भारसने डी अतुल कोहली किए कही कथा वीक एंड कैप्चर्ड कौन हम आंसर आपणकर ए ना बी ना सी ना डी कौन हम आंसर कौन हम डी की ना कौन आपणकर आंसर हो ऑप्शन कौन बी हो अतुल कोहली कथा कही तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 25 हु कॉइन्ड द टर्म पार्टी ऑफ कंसेंसस एंड पार्टी ऑफ प्रेशर्स
ऑप्शन ए ब्रूस ग्राहाम, बी फ्रांसाइन फ्रांकेल, सी मायरन वेनर, डी रजनी कोठारी। ए क्वेश्चन तो डायरेक्ट आम नोट रु उठिक आसी नोट जाए देखिए कास्ट रिलीज